Good morning, students. Let us start something from writing section today. And you can clearly see what is written on this page here: invitations and replies. Students, this question is asked for 4 marks generally, but this year it would be asked for 3 marks. As your exam pattern has changed this year only because of COVID-19. So you will be asked this question for 3 marks. Let me tell you how many types of invitations are there. But before that, I would like to tell you what is an invitation. Invitation, I think you all know, we send invitation to people whenever we are celebrating something. Whenever there is an occasion of celebration, we invite people to intensify our celebration. So there are two types of invitations. The first one is formal invitation. Students, this is the most widely used invitation card, and it is in card format. Whenever you are invited in any marriage ceremony, you are given a marriage card, and whenever you have to invite people for the marriage in your family, means if there is a marriage in your family, if you are going to celebrate something, just for example, engagement ceremony or marriage, birthday party, these kinds of celebrations are the celebrations we send card invitation to people. So this is the 99% used invitation format. But you don't know, in exam you are expected to master over it also, because it can be asked that you should write an informal invitation. You should send an informal invitation. So what is an informal invitation? Formal is when you send an invitation in card format, we get it printed by a printer, or we get it printed from a printing press. We select a design and they just print it in bulk. बहुत बड़ी संख्या में वो उसको प्रिंट कर देते हैं एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूट. इनफॉर्मल जो होता है, वी राइट दिस इन आ लेटर फॉर्मेट. इनफॉर्मल होता है पर्सनल लेटर की तरह. जैसे हम किसी फ्रेंड को एक लेटर लिख रहे हैं, वी आर इनवाइटिंग. आपने कभी 8th क्लास में या 9th क्लास में एक लेटर लर्न किया होगा, उसको लिखा भी होगा दैट यू हैव टू इनवाइट योर फ्रेंड फॉर द मैरिज of your elder sister or elder brother. So that was an informal invitation. It was a personal letter. So I think you have got what is the difference between formal or informal. And one more thing, in formal invitation you can't use I we, means आप पर्सनलाइज्ड नहीं होगे कहीं पर भी फॉर्मल इन्विटेशन में. बट इनफॉर्मल में आप पूरी डिटेल में बात कर सकते हो. यू कैन यूज आई वी यू एवरीथिंग. यू कैन बी you can tell some incidents of your life, means you have a lot of scope. आपके पास काफ़ी स्कोप होता है डिटेल में बात करने के लिए. सो यू कैन राइट इन इनफॉर्मल इन्विटेशन. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. लुक एट दिस. This is a marriage card. It is a very simple marriage card. These days we get marriage cards which are very decorated, very much decorated. बट ये सिंपल है, फिर भी आप समझ जाओगे. मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़रूरत है आपको बताने की कि मैरिज कार्ड्स कैसे छपते हैं. फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ. मिस्टर एंड मिसेस SS अहलूवालिया रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिस्टर सुधीर करण. ये मिस्टर सुधीर करण यहाँ पर हमारे कार्ड्स में नहीं लिखा होता है. वाई? क्योंकि हमने यहाँ पर सुधीर करण, जिसको भी हम इनवाइट कर रहे हैं, उसका नाम लिख दिया. तो इसका मतलब ये कार्ड सिर्फ उसी के लिए, और किसी को नहीं दे सकते हम तो कार्ड के बाहर नाम लिखते हैं ना जिस बंदे को देते हैं. तो
यहाँ पर हम नेम मेंशन नहीं कराते, बट आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भाई आपको फॉर्मल इनविटेशन कार्ड प्रिंट करना है, बनाना है और उसको भेजना है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा उसका नाम, बिकॉज एग्ज़ाम में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपको सभी के लिए पब्लिश कराना है, वही प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पर किसी का नेम मेंशन नहीं करोगे। मिस्टर सुधीर करंज कंपनी एट द मैरिज ऑफ देयर डॉटर गुरलीन टू गुरप्रीत। जनरली आपने कार्ड में देखा होगा, जो लड़का है उसकी फैमिली का एड्रेस, उसके फादर और मदर का नेम, सब कुछ यहाँ पर दिया होता है। एंड देन प्रोग्राम जो है वो कब होगा, ऑन संडे 12 अक्टूबर 2019, इट शुड बी 2020, कोई मैटर नहीं करता वैसे तो, क्योंकि दिस इज़ एन एग्जाम्पल, 2019 तो जा चुका है। एंड आफ्टरवर्ड्स एट होटल पार्क प्लाजा जयपुर रोड गंगानगर। ये थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, आपको पता है, जो जहाँ पर आप इनवाइट कर रहे हो वहाँ का ही आप सीधा एड्रेस दे दो और वहाँ पर प्रोग्राम जो होने वाला है उसकी डिटेल दे दो थोड़ी सी, कि भाई क्या क्या प्रोग्राम कितने बजे होने वाला है। देन हेयर RSVP मीन्स जो होस्ट साइड के लोग हैं उनके नेम यहाँ पर होते हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, सो दैट इफ़ एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग दे कैन कॉन्टैक्ट यू विद बेस्ट कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ये लेफ्ट राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों को किसी भी साइड में लिख सकते हो। हैव यू गॉट इट? आई थिंक देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट दिस इन्विटेशन कैन बी सेंट इन इनफॉर्मल वे ऑल्सो, मीन्स पर्सनल लेटर की तरह भी सुधीर करण को भेजा जा सकता था। तो वो कैसे लिखोगे आप? आपको लेटर लिखना आता है। लेटर का फॉर्मेट ये है कि भाई सेंडर्स एड्रेस आता है स्टार्टिंग में, सेंडर भेजने वाले आप हो ना, तो आप अपना एड्रेस यहाँ पर डालोगे। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें आपको एड्रेस नहीं दिया जाता है, देन व्हाट वुड बी यू राइट? एग्जामिनेशन हॉल, या फिर कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हो। उसमें कोशिश यही करना कि न्यू दिल्ली लिखते हो यहाँ पर। आफ्टर लिविंग वन लाइन स्पेस यू विल राइट डेट, देन आफ्टर लिविंग वन लाइन स्पेस you will address the person whom you are writing this personal invitation। माई डियर सुधीर, ध्यान रखना इस तरह के जो लेटर होते हैं, पर्सनल जो लेटर होते हैं, उसमें माई डियर लिख करके बंदे का नाम लिखना होता है। ऐसे नहीं लिखना माई डियर फ्रेंड, माई डियर सिस्टर, माई डियर ब्रदर, नो, नेम लिखना होता है यहाँ पे। देन you will be very glad to know that our Gurleen is getting married on 12th October 2019. Our would-be son-in-law Gurpreet is a computer engineer working for Microsoft in the US. It happened all of a sudden and we didn't have enough time to prepare। आपने देखा डिफरेंस कि इस जो हमने ये लिखा है इसमें हम काफ़ी बातें बता रहे हैं, तो ये पर्सनल हो गया, हम पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं कि भाई लड़का कैसा है और कहाँ रहता है। वो कार्ड में तो ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो फॉर्मल वे है, उसमें सिर्फ डिटेल दी जाती है कि भाई कब प्रोग्राम है, कितने बजे है, कहाँ पर है। ये चीज़ें उसमें फॉर्मल में नहीं बताई जा सकती। और यहाँ पर तो ये देखो, आप और भी पर्सनल हो जाएगा। हाउ कैन वी एवर थिंक ऑफ सेलिब्रेटिंग सच एन इम्पोर्टेंट ओकेजन विदाउट यू। फॉर्मल में डाल सकते हो आप ये बात, इतना पर्सनल फील करा सकते हो किसी बंदे को? नो, यू कांट। That is the difference. If you send an informal invitation to someone, that person feels very special। योर भाभी मी मीन्स, यहाँ ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ पर आई आना चाहिए, और वैसे भी आई भी कहाँ आना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। योर भाभी मीन्स द पर्सन हु इज़ राइटिंग द लेटर, हिज वाइफ। योर भाभी गुरलीन एंड आई बाद में आना चाहिए। योर भाभी गुरलीन एंड आई आर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू with us for wedding। do come with family। so what is the meaning of do को आगे लगाना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, तो ये प्रेशराइज करने के लिए, एम्फेसाइज डालने के लिए, जरूर आना फैमिली के साथ। योर्स SS अहलूवालिया। सो यू हैव गोट फॉर्मल कार्ड फॉर्मेट में होता है, उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होती, उसमें इतना ज़्यादा पर्सनलाइज्ड बातें नहीं होती हैं, और इनफॉर्मल में ये इस तरह से होता है। ध्यान रखना, एंड में आपको अपना नाम डालना है, ये सिर्फ योर्स लिख करके, यहाँ पर ये नहीं लिखना योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ओनली योर्स। आई थिंक यू हैव गॉट इट। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। दिस इज़ अ बर्थडे पार्टी। इसमें आपको बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो या आप बुला रहे हो किसी को, तो जो भी बुला रहे हैं उनका नाम, request the pleasure of on your benign presence on the auspicious occasion of the birthday party of their son। what is the name of their son? This is Chinkara, very unique name। and then
व्हेन इज इट 17th May, एंड देन वेन्यू कहाँ पर है ये, व्हाट इज़ द प्लेस वेयर दिस बर्थडे इज विल बी सेलिब्रेटेड। RSVP यहाँ पर राइट सेंटर में लिख रखा है, लिख सकते हो आप भी, कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर लेफ्ट में भी लिख सकते हो, फिर यहाँ पर विद बेस्ट कम्प्लीमेंट्स जैसे उसमें मैरिज कार्ड में था, यू कैन राइट इट लाइक दिस। इसको हम अब इनफॉर्मल वे में पर्सनली भी भेज सकते हैं, जिसको भी भेजा है ऐसे ही जैसे पहले भेजा था, मीन्स सेंडर्स एड्रेस, हमारा एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ करके एड्रेस करेंगे, किसको लिख रहे हैं, डियर रानू, यू विल बी प्लीज टू नो दैट आर चिंकारा हैज़ टर्न्ड 1, इट्स अ ग्रेट ओकेजन फॉर अ पार्टी, इज नॉट इट, सो गेट रेडी फॉर एन इवनिंग फुल ऑफ डांस, म्यूजिक, फन एंड फ्रॉलिक। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पे, जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं उनमें आप एब्रीविएटेड वर्ड्स फॉर्म्स यूज़ कर सकते हो। फन एंड फ्रोलिक ये एक्चुअल वर्ड नहीं है, फन एंड फ्रोलिक, ये एन जो है एंड है, तो ये एब्रीविएटेड आप इसमें यूज कर सकते हो, आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, निक नेम यूज कर सकते हो यहाँ पर, बट फॉर्मल में नहीं कर सकते हो आप। ऑफकोर्स देयर विल बी फूड टू, डू कम विद भाभी जी एंड किड्स, ये ध्यान रखना कि पैराग्राफ्स में लिखना है, देखो एक पैराग्राफ ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पैराग्राफ्स में लिखना है। रिमेंबर 17th May 8 PM होटल इंपीरियल द मॉल, नो रिक्वेस्ट, नो रिग्रेट्स, नो एक्सक्यूजेज, सी यू, योर्स टिकोलो। So I think you have got the difference between formal invitation and informal invitation. Now you may be asked to send the reply of these invitations. फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने वो कार्ड वाला इन्विटेशन भेजा था जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, सुधीर करण आप हो, सुधीर करण का लेटर आया है कि सॉरी कार्ड आया है मैरिज का, और वो उसका रिप्लाई करना है। वाई आर वी एक्सपेक्टेड टू सेंड अ रिप्लाई? इफ़ वी आर लिविंग इन विलेजेस, इन स्मॉल टाउन्स, देर इज़ नो importance of sending a reply, but if you are living in a mega city, metropolitan city, it is very necessary to tell them that you are attending the marriage, ताकि वो उसी के हिसाब से अरेंजमेंट करें। कितने लोग आने वाले उनको पता होना चाहिए ना, कि भाई इतने लोग आने वाले हैं और उनकी हमने अरेंजमेंट करनी है। और ये एक एटिकेट की बात हो जाती है कि आप सामने वाले को बता रहे हो कि दैट आई एम कमिंग और नॉट कमिंग, तो वो उसी हिसाब से अपनी अरेंजमेंट करते हैं। और आपको भी अब कभी इस तरह से ओकेज़न पे अगर किसी को बुलाना है और आपको पता ना हो, आपने इनविटेशन तो दिया है 200 लोगों को, और आपको ये नहीं पता उसमें से 200 में से 100 आएंगे, 150 आएंगे या 80 आएंगे, कुछ नहीं पता आपको, और एंड यू आर जस्ट प्लानिंग फॉर, आपके दिमाग में ये भी रहेगा 200 आ सकते हैं सारे, या आपके दिमाग में ये भी रहेगा 200 के साथ और भी आ जाए, क्या पता और किसी को भी ले आए, या आपको लग रहा है कि कहीं ना आए, तो आप किस तरह से अरेंजमेंट करोगे, यू विल बी इन कन्फ्यूज़न। तो ये रिप्लाईज सेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। सो सुधीर करण ने रिप्लाई किया है, ध्यान रखना ये जो इन फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग अ रिप्लाई इज़ रियली फॉर्मल, इसमें आपको आई, वी, मी इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करने हैं, आपको इस तरीके से लिखना है जैसे आप सुधीर करण और कोई ही है और उसके लिए आप लिख रहे हो, मीन्स आपको पर्सनलाइज्ड नहीं होना है, इसमें फॉर्मल रहना है। लुक एट दिस, ये दोनों तरीके से आप भेज सकते हो। जनरली ये वाला ज़्यादा ऑप्ट किया जाता है, कार्ड वाला थोड़ा सा डिज़ाइन करना पड़ता है, लाइन में ऐसे ऐसे करके लिखना होता है, तो यू शुड राइट इट लाइक दिस। Mr. Sudhir Karan has much pleasure in accepting the kind invitation of Mr. and Mrs. S. Ahluwalia to the marriage of their daughter Gurleen, and टेक केयर ऑफ इट। आपको शादी किसकी है ये मेंशन ज़रूर करना है, और आपको डेट और डे और टाइमिंग ये ज़रूर मेंशन करना है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सुधीर करण ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसने ये नहीं लिखा आई हैव मच प्लेजर, उसने लिखा मिस्टर सुधीर करण हैज़ मच प्लेजर। ऑल्दो सुधीर करण ने खुद लिखा है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं लिख रहा है आई, तो ध्यान रखना ये बड़ी मिस्टेक हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे आई यूज़ किया। सेम चीज़ को कार्ड फॉर्मेट में अगर आप आंसर करना चाहते तो ऐसे करते, लेकिन अगर आप नोट डालना चाहते हो, जैसे एक मैसेज डालना है आपको, तो बॉक्स में ऐसे दोनों को बॉक्स में डालना है आपको, मिस्टर सुधीर करण थैंक्स मिस्टर एंड मिसेज एस एस अहलूवालिया फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू देयर डॉटर गुरलीन्स मैरिज ऑन
12th October 2019 at 10 AM and has great pleasure accepting it. So सेम चीज़ है, लेकिन ये एक मैसेज फॉर्मेट में है और ये कार्ड फॉर्मेट में है। तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप यहाँ पर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करो, कार्ड की तरह इसको सजाओ। जस्ट एक कोशिश करो कि लगे कि ये कार्ड है। अब इसी को आप लेटर फॉर्मेट में भी आंसर कर सकते हो। लुक एट दिस। लेटर फॉर्मेट में अगर आप आंसर कर रहे हो तो आपको अपना एड्रेस डालना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ करके डियर मिस्टर एंड मिसेज SS अहलुवालिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू द वेडिंग ऑफ योर डॉटर मिस गुरलीन ऑन 12 अक्टूबर 2019 एट होटल पार्क प्लाजा, जयपुर रोड, गंगानगर। ये आपको ज़रूर मेंशन करना है कि भाई मैरिज कब है और कहाँ पर है। माई वाइफ एंड आई आर वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट इट, बेस्ट विशेज़, सिंसियरली सुधीर करण। ये थोड़ा सा फॉर्मल हो गया, ये इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा बातें नहीं की है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर आप इसमें एक दो बातें और डाल दो इस तरह से, जैसे हैज़ शी ग्रोन सो बिग, मीन्स इतनी बड़ी हो चुकी है वो, एंड हम तो आई मीन तो उसको भी देखा था गुड़िया के साथ खेलते हुए। इस तरह की बातें अगर आप डालोगे तो डेफिनेटली इट विल बी इनफॉर्मल। थोड़ा सा बातें पर्सनल हो जाएंगी तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा रिप्लाई। So now let me give you one more example of informal reply. इनफॉर्मल, अगर आपको एक्सेप्ट करना था तो वो किया था आपने, लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्ट करना है आपको, सेम चीज़ है। मिस्टर सुधीर करण सिंसियरली थैंक्स मिस्टर एंड मिसेज SS अहलुवालिया, सेम, यहाँ तक सब कुछ सेम है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, सेम है यहाँ तक। बस यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस हो गया। बट रिग्रेट्स हिज इनेबिलिटी टू अटेंड, regrets his inability to attend due to prior engagement. Prior engagement means he has to do something else. He wishes Gurleen a happy married life. यहाँ पर आपको विश जरूर करना है for happy married life। आपको रीज़न बताना है that you are not able to come because of prior engagement, so you are not accepting it। ये मैसेज फॉर्मेट में आप यही चीज़ लिखोगे कि भाई सेम वही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना। बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड इट ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना, जैसे लेटर में डालना होता है कि भाई थैंक यू वगैरह, कुछ भी नहीं डालना, योर्स वगैरह कुछ भी नहीं, सीधा मैसेज ऐसे ही डालना है। और फिर इसको इस तरीके से लिखा जाए तो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, सारी चीज़ वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आकर के आई एम नॉट एबल टू कम, ये एक लाइन डालनी है यहाँ पे। और अगर इसी लेटर को पर्सनल बनाना है, बिल्कुल इनफॉर्मल बनाना है, तो देखो ये रहा है, गॉड हैज़, ओ माई गॉड, हैज़ शी ग्रोन सो बिग, आई स्टिल रिमेंबर हर एज अ टाइनी डॉल इन अ पिंक फ्रॉक। थोड़ा सा बढ़ा दिया, पर्सनल बातें थोड़ी सी और डाल दी, तो ये पर्सनल हो गया, ये इनफॉर्मल हो गया, और पीछे वाला इनफॉर्मल था। तो यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, यहाँ पर डिक्लाइन किया है, दैट यू आर नॉट एबल टू कम बिकॉज ऑफ प्रायर एंगेजमेंट। बट विशेज जरूर करनी है, विश जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखना है। Let me give you one more example. For example, you are the principal of a school and you have to invite the chief guest for silver jubilee celebration. और आप एक काम तो करोगे कि कार्ड प्रिंट कराओगे प्रिंटिंग प्रेस से अच्छा सा, उसमें स्कूल का यहाँ ऊपर एवरीथिंग शुड बी गिवन, स्कूल की जो चीज़ें होती हैं, जो स्कूल का नेम, लोगो वगैरह। बट एग्ज़ाम में आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि ये लोगो आप बनाओ वहाँ पर। जस्ट अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको करना क्या है, स्कूल का नेम डालना कैपिटल में, जो भी स्कूल का एड्रेस है, एफिलिएशन नंबर अगर आपको पता है तो वो डाल दो, अदरवाइज एफिलिएशन नंबर डाल करके क्रॉस और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके उसके बाद सीधा यहाँ पर आ जाओ। क्या लिखना है उसके बाद आपको, द मैनेजमेंट स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ MBC सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री एनक्लेव मॉडल हाउस लुधियाना, ऐसे भी बना सकते हो आप। ये लोगो बनाने की बजाय आप सीधा ये लिख सकते हो, स्कूल का ऊपर मेंशन करके उस लेटर हेड जो होता है, और उसके बाद फिर ये कोर्डियली इनवाइट मिस्टर रमाकांत चंदेल IAS। कहाँ है वो, किस डिपार्टमेंट में है, सेक्रेटरी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किस लिए इनवाइट कर रहे हो, टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ किस चीज़ के, स्वर्णिमा। स्वर्णिमा क्या है, द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। कहाँ पर, ऑफ स्कूल का है ये, तो यू शुड मेंशन इट ऑन संडे।
यहाँ पर ये मेंशन करना है कब है ये, 20 सितंबर 2019, और वेन्यू कहाँ है, एट स्वामी दयानंद ऑडिटोरियम मॉडल हाउस लुधियाना, एंड दिस इज़ द टाइम। यू विल हैव टू मेंशन एवरीथिंग, कहाँ पर प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, किस लिए है, और कितने बजे है, और किस जगह पे है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। RSVP स्कूल के प्रिंसिपल का ही नेम आएगा, यहाँ पर फालतू कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर फ़ोन नंबर आ गया, फ़ोन नंबर यहाँ पर भी डाल सकते थे आप, email ID भी डाल सकते थे, विद बेस्ट कम्प्लीमेंट्स लिख सकते थे आप राइट साइड में। सो दिस इज़ इन कार्ड फॉर्मेट यू आर इन्वाइटिंग, बट यू कैन इन्वाइट इन लेटर फॉर्मेट ऑल्सो। इट शुड बी पर्सनल। अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लेटर हेड पे लिख करके भेजो। स्कूल का एक पेज होता है जिसपे ऑल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिंटेड, जो भी डिटेल्स भेजनी होती है स्कूल का, ऊपर स्कूल की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कूल, व्हाट इज़ एफिलिएशन नंबर, ये एक पेज होता है सभी स्कूल्स का। तो आपकी आपकी कोई फॉर्म है उसका भी एक लेटर हेड होता है डेफिनेटली, लेकिन आप एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं बना सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर अपना एड्रेस डालोगे, स्कूल का नेम, कहाँ पर है स्कूल, और तीसरी लाइन में डेट, और उसके बाद जिसको भी लेटर लिख रहे हो वो उसका डेजिग्नेशन, किस डिपार्टमेंट में है वो, किस सिटी में है, और फिर एड्रेस करते हो डियर सर, एंड देन यू विल राइट द सब्जेक्ट, किस लिए लिखा गया है लेटर। सब्जेक्ट है इनविटेशन टू ग्रेस स्वर्णिमा। स्वर्णिमा क्या है, द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द स्कूल एज चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के तौर पर उनको इन्वाइट किया जा रहा है। आवर्स इज प्रीमियर इंस्टीट्यूशन of North India, well known for quality education that aims at holistic development of our students. Located in the industrial city of Ludhiana, our school has a glorious tradition of producing excellent results in the AISSE and AISSCE examination of CBSE. Many of our alumni, means our students, have taken up careers in medicine, engineering, management, business, industries, performing arts, sports and other fields. Means here स्कूल हैज़ बिन प्रेज, स्कूल की पूरी पब्लिसिटी की गई है कि भाई क्या है हमारा स्कूल। मीन्स बंदे को ये लगे कि भाई कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है, भाई बहुत अच्छा स्कूल है, और अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे लिए भी एक अच्छी बात है। यू विल बी प्लीज टू नो दैट दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग द गोल्डन जुबली ऑफ आर इंसेप्शन। मीन्स यहाँ पर ये इस चीज़ को सिर्फ एक लाइन में ये चीज़ डाली गई ताकि ये बिल्कुल सबसे अलग हो जाए, क्या चीज़ है, क्या चीज़ सेलिब्रेट की जा रही है। आई एम जॉइंड बाई मैनेजमेंट स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल इन, ये इन नहीं आएगा यहाँ पे। आई एम जॉइंड बाई द मैनेजमेंट स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल cordially इन्वाइटिंग यू टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ आर गोल्डन जुबली प्रोग्राम स्वर्णिमा, which we propose to organize on 20th September 2019 at स्वामी दयानंद ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल बिटवीन 5 PM and 8 PM। जो कार्ड में डिटेल डाली थी वही यहाँ पर भी डाली है, बट ये एक लेटर फॉर्मेट में है। द प्रोग्राम विल बी अ कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा showcasing द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। मीन्स हम कल्चरल प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे उस प्रोग्राम में, उस फंक्शन में। वी वुड ऑल्सो लाइक to honor some of our illustrious teachers and students on the occasion. Your presence on the occasions will be an honor for us। तो ये बातें डालोगे आप, definitely the person will feel special and he will give his consent that he is coming। We are open to shifting the date of the program if it does not suit you। यहाँ पर ये लाइन डाली गई है, बहुत ही ज़बरदस्त चमत्कारी काम करेगी। बोल दिया गया अगर आपको टाइम नहीं है तो हम अपने प्रोग्राम को किसी और डेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे प्रोग्राम शिफ्ट करना किसी और डेट पे आपको पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। सब कुछ तैयार होता है, हर एक चीज़ की अरेंजमेंट की जाती है, पेमेंट्स कर दी जाती है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। सिर्फ एक चीफ गेस्ट के लिए वो अगर करने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली चीफ गेस्ट को बड़ा स्पेशल फील हो रहा है कि भाई देखो मुझे ही चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं, और ऐसे में फिर चीफ गेस्ट को लगता है कि दैट मुझे जाना चाहिए। May we humbly request you to accept our invitation and grace the occasion with your better half and children, please. Looking forward on to hearing from you. Yours sincerely, signature, name and designation। प्रिंसिपल है, नेम क्या है प्रिंसिपल का, और उसके ऊपर सिग्नेचर। सो यू सी कार्ड फॉर्मेट में इतना स्कोप नहीं था हमारे पास लिखने के लिए। कार्ड फॉर्मेट में हम लिमिटेड चीज़ें ही डालते हैं, बट यहाँ पर कितना स्कोप मिल गया हमको। लेकिन अब मान लेते हैं आप हो वो IAS ऑफिसर और आपको इसका लेटर का रिप्लाई करना है कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तो आपका भी एक लेटर हेड है, ये रहा मिस्टर रमाकांत चंदेल IAS सेक्रेटरी, ये आपका लेटर हेड है। आप जब भी किसी के पास कुछ ईमेल भेजते हो या लेटर भेजते हो तो आप इसी पे भेजते हो, यहाँ पर लिखते हो, ये ऑलरेडी आपके पास प्रिंटेड है पेज।
तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये एड्रेस यहाँ लेफ़्ट साइड में डालो 3 लाइन में डेट से पहले। ये आप इस तरह का बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्ज़ाम में। सो डेट डालने के बाद प्रिंसिपल को लिख रहा है जिसको चीफ गेस्ट बनाया गया था, और कहाँ किसका प्रिंसिपल है, स्कूल का नाम बता दिया, एड्रेस बता दिया, और फिर डियर डॉक्टर अनामिका सूद, योर काइंड इन्विटेशन टू स्वर्णिमा द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑन 20 सितंबर, ये सब्जेक्ट डाल दिया जो आपने इन्विटेशन दिया था। थैंक यू, यहाँ पर थैंक यू करते हुए बता दिया कि आपने जो मुझे इनवाइट किया है उस प्रोग्राम में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रोग्राम का नाम बता दिया, कब है और कितने बजे है, ये मेंशन करना है यहाँ पे अगर आपको कोई इनविटेशन इस तरह का मिला है तो। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द मैनेजमेंट स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल फॉर कंप्लीटिंग 50 ग्लोरियस ईयर्स इन सर्विस ऑफ द नेशन थ्रू एजुकेशन। इंडीड इट इज़ अ वेरी कमेंडेबल अचीवमेंट दैट कॉल्स फॉर ग्रैंड सेलिब्रेशन। आप जो ये सेलिब्रेशन कर रहे हो डेफिनेटली ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने इतने सारे ईयर्स सक्सेसफुल स्पेंड किए हैं। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू द चीफ गेस्ट ऑफ फंक्शन एंड आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट इट। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये यहाँ पर लिखना है कि भाई आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट इट। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो सो आपको क्या लिखना है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर टू यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू बी द चीफ गेस्ट, बट express my deep regrets that I would not be able to attend the function because of prior engagements, because of busy scheduled। जो भी आप रीजन लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो यहाँ पे अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो तो। माई पर्सनल असिस्टेंट, अगर आपने एक्सेप्ट किया तो ये लाइन आएगी, नहीं एक्सेप्ट किया तो सिर्फ आप यहाँ पर विश कर सकते हो कि भाई आई विश ऑल द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ मेम्बर्स ऑल द बेस्ट फॉर द फंक्शन, माई विशेज़ माई बेस्ट विशेज आर विद यू, विद काइंड रिगार्ड्स योर सिंसियरली। क्योंकि ये फॉर्मल है तो ये लिखना ज़रूरी है यहाँ पर, योर सिंसियरली। यहाँ पर आपका नेम, आपका डेजिग्नेशन और नेम के ऊपर साइन। सो दिस इज़ द रिप्लाई। आई थिंक यू हैव गॉट कि किस तरीके से आपको इन्विटेशंस भेजने हैं, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स। So we'll do a new topic in the next lecture. Till then, my dear students, take care. Bye.